Let's start the introduction of the poem number 8 on Killing a Tree by Guy Patel. Before I start the poem, I would like to tell you about the meanings. शब्दार्थ ये दो प्रकार के होते हैं, which I have mentioned over here. Meanings, these are of two types. The first one is a literal meaning, which you can say direct or dictionary meaning, which you refer the dictionary and you find out from there. This has also been called explicit or the overt meaning, means which is not hidden, which is quite open. Then there is the second one, which is symbolical meaning, which I mentioned over here. This is symbolical. Or hidden meaning or indirect meaning. This is also called implicit or covert meaning. Just remember these words in your life. So I have told you two types of meanings. शब्दार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक सीधा होता है, एक छुपा हुआ होता है. जो छुपा हुआ होता है उसमें ओमन्स या बहुत सारी चीज़ें होती हैं. जैसे किसी को ये बोला जाए वो गधा है, क्या वो वास्तव में गधा है? नहीं, वो वास्तव में गधा नहीं है, बल्कि वह मूर्ख है. तो यहाँ पर ये चीज़ है. या कहे कि वो बिल्कुल उल्लू है. उल्लू मीन्स उसके कुछ समझ में नहीं आता है. लाइकवाइज ये सिंबॉलिकल यूजेस हैं. और लिटरली या डायरेक्ट होता है वो बिल्कुल उसके कुछ समझ में नहीं आता है. अगर आप बोलते हो बोला वो बेदिमाग का आदमी है, वो बेदिमाग इंसान है. लाइकवाइज दिस इज़ डायरेक्ट और लिटरल मीनिंग. और सिंबॉलिकल होता है छुपा हुआ, उसमें क्या कहना चाहता है वो. इसी प्रकार से इस पोइम में भी है. यहाँ पर एक पेड़ की बात होती है. द राइटर गी पटेल इज डिस्कसिंग अबाउट वन ट्री and he has used this as a symbol. Tree symbol is being used for the deep-rooted evil in the society. Okay, now let me start about this. What is being said in this poem? This poem is but not clear, in fact, in its meaning. If we just go into the direct meaning or onto the finding out what is being said directly in this one, because the things are being said in some other way, which is quite vague in nature, which is not clear. He says, or the Guy Patel says that tree, or he has used the tree as a deep-rooted evil in the society. And he says that you cannot just kill a tree by a simple jab or simple cutting or a mild cutting. No, that tree has to be uprooted. That has to be stubbed and uprooted. After that one, that should be scorched in the sun and withered. There is a process because it takes a lot of energy from the ground, and it takes or you can say it consumes the earth's energy. He also tells that at some of the places the bark of the tree is like leprous, and from there also it spurt out many, you can say, twigs and all that one. So he is saying that to cut down a tree or to kill it totally, you need to have a very good patience, and that has to be pulled out from the earth, and its roots must be uprooted, because roots are the main source of its energy. So is the social evil. Social evil must be, it may not be a small one, it can be a big type of size. So it has to be pulled out completely from the society, and for that one you need to have a great effort in that one. Now at the last he says that once you have taken out the root of the tree, that must be left in the sun and the air to dry, especially in that particular time that will scorch and chalk, and you have to just left it there unless its color changes to brown, hardens, twists and withers. Then only it will dry up, and then only you can say that yes, a tree is being killed. In the same way, you have to just put your full effort on a social evil and take it out, otherwise it will again spurt from its base, and you won't eliminate that one completely.
नाउ लेट मी कवर दिस वन इन हिंदी ऑल्सो। जैसा कि मैंने आपको बताया, शब्दार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक शाब्दिक अर्थ होता है और एक जो है उसमें गुप्त छुपा हुआ होता है। फर्स्ट लिटरल है, दूसरा सिंबॉलिकल होता है। लिटरल मीनिंग जो डायरेक्ट मीनिंग होता है, जो डिक्शनरी में आप फर्स्ट मीनिंग देखते हैं, वो डायरेक्ट मीनिंग होता है, डिक्शनरी मीनिंग भी। इसको एक्सप्लिसिट या ओवर्ट मीनिंग भी बोलते हैं, जो बगैर छुपा हुआ है। दूसरा सिंबॉलिकल मीनिंग है, जैसा मैंने आपको हिंदी में बताया था कि जैसे वो गधे वाला, उल्लू वाला, लाइकवाइज। देन हिडन और इनडायरेक्ट मीनिंग होता है, ये छुपा हुआ होता है, इम्प्लिसिट या इसको कोवर्ट भी बोलते हैं। इसी तरह के कुछ मीनिंग्स का प्रयोग इस पोइम में किया गया है। खास करके जो आपकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट वगैरह होते हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त सिंबॉलिकल मीनिंग्स का यूज़ करता है। आपकी 10th क्लास में आएंगी। और जैसे आपका रोड नॉट टेकन जो फर्स्ट पोइम है, उसमें भी जो है थोड़ा सिंबल्स यूज़ हुआ है उसने। यहाँ पे ट्री सिंबल को यूज़ किया गया है। एक ट्री के ऊपर कहानी चलती है, पूरी की पूरी ये पोइम एक ट्री के ऊपर बेस्ड है। और इसमें पोइट गिव पटेल बोलता है कि जिस तरह से एक पेड़ को आराम से किसी चाकू की छोटी सी गोद से नहीं मारा जा सकता, और वो फिर दोबारा से उसमें अगर आपने कोई उसमें कुछ कहीं पे मारा भी है, तो उसकी वो स्किन जो होती है, उसकी जो छाल या खाल होती है, वो दोबारा उसको रिकवर कर लेती है और उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से सोशल इविल का भी होता है। आप सोशल इविल को जो है थोड़ा सा एक बार वो करोगे, फिर वो अपने आप फिर दोबारा पनपने लग जाएगा। फिर बोलता है कि ये जो पेड़ होता है, ये एक पृथ्वी की उपजाऊपन या ऊपर वाली परपटी, जो उपजाऊ परपटी होती है, उससे जो है बहुत सारा जो है एक परजीवी के रूप में जो है अपनी एनर्जी लेता है, और फिर ये बड़ी बुराई के रूप में जो है बढ़ के जो है एक तरह से बड़ा हो जाता है। और इसकी जो छाल होती है, उसमें से भी पत्ते निकलने लगते हैं, जो कि ऐसा लगता है जैसे कुष्ठ रोग का शिकार पड़ी हो, जो लेप्रस टाइप होती है, जिसको कुष्ठ रोग मीन्स जिसकी चमड़ी में कुछ बीमारी हो जाए, तो ऐसे लगती है इसकी छाल। और वहाँ से भी जो है जैसे कुरीतियाँ या बुराइयाँ समाज में जो है उगती रहती हैं, उठती रहती हैं, इसी तरह से वहाँ से भी पत्ते निकलते रहते हैं। फिर बात करता है कि इसको जो है पेड़ को पूर्ण रूप से काटने के लिए बहुत भारी चोटें लगाकर काटना चाहिए, और फिर बाद में जो है इसके टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। इसको नॉर्मल उससे नहीं मारा जा सकता, इसके लिए बहुत बड़े प्रयास चाहिए। और अगर आप इसकी छाल को भी डैमेज करोगे, तो फिर बाद में जो है वो धीरे धीरे जो है अपना रिकवर कर लेती है उसको। अब यहाँ पर जो पेड़ की जो विशाल गहरी जड़ें हैं, वो एक बुराई का प्रतीक माना गया है, और उसको जो है छोटे छोटे प्रहारों के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए उसको जो है, जो ये जड़ हैं इसकी, ये इसका वास्तविक स्रोत है, और इसमें इसकी वास्तविक ताकत होती है एक पेड़ की, जो गुफा की तरह से एक नीचे अपनी आकृति बना लेती है। और फिर इसको रस्से से बांध के जो है पेड़ को पूरा और जोरदार झटके से बाहर निकाल देना चाहिए। ये गीली और सफ़ेद होती है और काफ़ी संवेदनशील भी होती है, और इसको बाहर खुले में जो है डाल देना चाहिए, जब तक कि ये जो बिल्कुल झुलसने के लिए और इसका दम घुटने के लिए इसको छोड़ देना चाहिए, जब तक कि ये सूख करके जो है सख्त नहीं बन जाती, बल नहीं खा लेती और मुरझा नहीं जाती। तभी जो है आप पेड़ को वास्तविक मरा हुआ मानिए। तो कुल मिलाकर ये है कि जो है एक बुराई को समाप्त करने के लिए इसके स्रोत को पूरा उखाड़ना पड़ता है, और जब इसकी पूरी शक्ति निचोड़ ली जाती है, तब इसको दोबारा अंकुरित होने का मौका नहीं मिलता। तब आप मानिए कि वो बुराई समाप्त होगी। तो यहाँ पर एक पेड़ को एक सामाजिक कुरीति या बुराई का जो है प्रतीक माना गया है, कि किस तरह से जो है वो जमीन के हिस्से की या परपटी की एनर्जी लेकर के बड़ा होता है, और उसको थोड़ी सी चोट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह से सामाजिक बुराई भी होती है, उसको पूरी तरह से जो है काटने के लिए, ख़त्म करने के लिए बहुत बड़े एक प्रयास की ज़रूरत होती है। वो छोटे प्रयास या किसी जो है छोटी मोटी चीज़ से जो है उसको नहीं उखाड़ा जा सकता। एक सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक कुरीति के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास करने की आवश्यकता होती है।
we'll discuss it further. Of course, it's a very small poem. We'll discuss it there in the interpretational part now.